Start exercise 13.2, page number 260 on your NCERT book. Question number 1 is using laws of exponents simplify and write the answer in exponential form. Means आपको exponential form में आंसर को छोड़ना है और साथ ही साथ laws of exponent का यूज करते हुए इस क्वेश्चंस को करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 to the power 2 multiplied by 3 to the power 4 and multiplied by 3 to the power 8. तो यहाँ पर देखिए बेस नंबर सेम है, तीनों में 3 है और पावर्स डिफरेंट है. तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? हम फर्स्ट लॉ यूज करेंगे. a to the power m multiplied by a to the power n that gives you a to the power m plus n. मीन्स अगर बेस नंबर सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो तो पावर्स का एडिशन हो जाता है. सो वी कैन राइट डायरेक्टली 3 to the power 2 plus 4 plus 8 that gives you 3 to the power 14. So 3 to the power 4 is the exponential form. Now second question is 6 to the power 15 divided by 6 to the power 10. यहाँ पर बेस नंबर सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बट बीच में डिवीजन का साइन है. सो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? हम सेकेंड लॉ यूज करेंगे. a to the power m divided by a to the power n that is equal to the a to the power m minus n. So we can write directly 6 to the power 50 minus 10 that gives you 6 to the power 5. Question number 5 is 5 to the power 2 to the power 3 divided by 5 to the power 3. तो यहाँ पर हमको दो लॉ लगाने पड़ेंगे. सबसे पहले पावर के ऊपर पावर है, इसको एक सिंगल पावर में हमको डिनोट करना पड़ेगा. उसके बाद हम डिवीजन अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर हम कौन सा वाला लॉ लगाएंगे? a to the power m to the power n. सो इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी कैन राइट 5 to the power 2 multiply 3 क्योंकि 2 के ऊपर पावर 3 था. सो वी कैन राइट 2 multiply 3 and divide by 5 to the power 3 as it is. 5 to the power 6 2 multiplied by 3 that gives you 6. 5 to the power 6 divided by 5 to the power 3. अब यहाँ पर हम अगेन हमारा सेकेंड लॉ लगाएंगे जिसमें डिवीजन का साइन होता है, बेस नंबर सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होती है, तो हम पावर्स को माइनस करते हैं. तो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 to the power 6 minus 3 that gives you 5 to the power 3. and remaining questions are homework for you. Question number second, simplify and express each of the following in exponential form. यहाँ पर भी हमको इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है. 2 to the power 3 multiplied by 3 to the power 4 multiplied by 4. नीचे डिनोमिनेटर में 3 multiplied by 32. तो सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाने के लिए हमको इनको सेम बेस में लेकर आना पड़ेगा. सो वी कैन राइट 4 एज अ स्क्वायर ऑफ 2. 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 32 2 से डिविजिबल होता है. तो सबसे पहले यहाँ पर 32 के फैक्टर्स निकालिए. 2 2 2 2 2 5 times 2 will come. So we can write 32 as a power 2 to the power 5. So replace it 2 to the power 3 as it is multiplied by 3 to the power 4 as it is. Replace 4 by square of 2. Now denominator 3 multiplied by 32 की प्लेस पर हम 2 to the power 5 लिख सकते हैं. अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर बेस 2 की पावर 3, यहाँ बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है. सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट लॉ लगाते हैं, हम पावर्स को ऐड कर देते हैं. 2 की पावर 3 प्लस 2 ये वाला सॉल्व किया. 3 to the power 4 एज इट इज है. डिनोमिनेटर में 3 multiplied by 2 to the power 5 भी एज इट इज है. ना यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 2 to the power 5 multiplied by 3 to the power 4 as it is. डिनोमिनेटर में 3 multiplied by 2 to the power 5. यहाँ भी 2 to the power 5 है, यहाँ भी 2 to the power 5 है. तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो हमारे पास में क्या बचेगा? 3 to the power 4 divided by 3. So we can अब हम यहाँ पर हमारा सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे कि 3 to the power 4 minus 1 that gives you 3 to the power 3. That is our exponential form. Now question number 2 is 5 to the power 2 to the power 3 multiplied by 5 to the power 4 divided by 5 to the power 7. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में 5 के ऊपर पावर है, तो सबसे पहले हम 5 to the power 2 multiplied by 3 by our laws of exponent multiply 5 to the power 4 as it is divided by 5 to the power 7 भी as it is. 5 to the power 2 multiplied by 3 that gives you 5 to the power 6 multiplied by 5 to the power 4 bracket close divided by 5 to the power 7 as it is.
यहाँ पर बेस नंबर सेम है, पावर डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, दैट गिव्स यू 5 to the power 10 डिवाइडेड बाय 5 to the power 7 एज इट इज। अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करेंगे मीन्स यहाँ पर हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है। 5 to the power 10 डिवाइडेड बाय 5 to the power 7, यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा हमारा, जिसमें बेस हमारा सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बीच में डिवीजन का साइन है, सो वी कैन अप्लाई माइनस। ठीक है, सो 5 to the power 10 minus 7 that gives you 5 to the power 3। थर्ड क्वेश्चन इज 25 to the power 4 डिवाइडेड बाय 5 to the power 3। अब यहाँ पर हमारे पास कोई लॉ नहीं है जिसमें बेस डिफरेंट है और पावर्स भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम 25 को लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 5। सो 25 को रिप्लेस करेंगे 5 to the power 2 से, और उसके ऊपर 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय 5 to the power 3 भी एज इट इज। 5 to the power 2 multiplied by 4 that gives you 5 to the power 8 divided by 5 to the power 3 as it is। यहाँ पर डिवीजन का साइन है, बेस नंबर सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम उनकी पावर्स को माइनस कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 5 to the power 8 minus 3 that gives you 5 to the power 5। Now question number 8 is 3 to the power 0 plus 2 to the power 0 multiplied by 5 to the power 0 is our law a to the power 0 that gives you 1. So we can write 3 to the power 0 1, 2 to the power 0 as 1 and 5 to the power 0 as a 1. 1 plus 1 that gives you 2 multiplied by 1, 2 multiplied by 1 that gives you 2. And remaining questions are homework for you. In question number 3 we can say true or false, means whether the statement given statements are true or false। 10 to the power 1 multiplied by 10 to the power 11 equal to the 100 to the power 11। So why our laws 10 to the power 1 plus 11 equal to the 100 to the power 11। यहाँ पर 10 to the power 12 मिल रहा है और यहाँ पर 100 to the power 11, तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं। So we can say that statements are false। Now 2 to the power 3 greater than 5 to the power 2। तो इसको हम एक्सपांड करके देख लेते हैं। 2 multiply 2 multiply 2, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम्स है, एंड 5 का स्क्वायर मीन्स 5 multiply 5 दैट गिव्स यू 8 ग्रेटर देन 25। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं, बिकॉज 25 इज ग्रेटर देन 8, सो दैट स्टेटमेंट्स आर आल्सो फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मीन्स यहाँ पर ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके प्रोडक्ट को हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। प्रोडक्ट एज अ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको इसको डिनोट करना है। तो क्या हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, उससे अच्छा है हम इसको सेपरेट प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स कीजिए इसके, 108 को डिवाइड बाय 2 किया, so you will get 54 divided by 2 that gives you 27 divided by 3 that gives you 9 3। तो हमारे पास 108 के फैक्टर कितने आ गए, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 कितने टाइम्स है, 1 and 2 टाइम्स, so 2 to the power 2 and 3 comes 3 times, so multiplied by 3 to the power 3। सेम एज 192 के भी आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं उसके हमारे पास में 2 to the power 6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 1, क्योंकि 3 यहाँ पर एक ही बार आया है। अब दोनों को हम कंबाइन करते हैं, 108 मल्टीप्लाइड बाय 192 चाहिए हमको, तो दोनों को हम साथ में लिखते हैं। ये 108 के फैक्टर्स और ये 192 के फैक्टर्स। यहाँ पर 2 और 2 दोनों का बेस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। 2 to the power 2 plus 6 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर 3 बेस सेम है और यहाँ भी 3 बेस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को भी ऐड कर देते हैं। 3 to the power 2 plus 1, सो हमारा आंसर कितना होगा, 2 to the power 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम इज क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक वैसे ही करना है, तो आप उसको खुद से सॉल्व कीजिए।